Assalamu alaikum, students. So we are back again with yet a new lecture on amplifiers again. You have already studied 2 lectures on amplifiers, bipolar junction transistor amplifiers. So this is going to be the 3rd in the series of the transistor to be utilized as an amplifier. But of course in this lecture we would define some new terms, which is the biasing of the transistor amplifier circuit in common base as well as in common emitter, just as we did when we were studying the transistor as a current device. Now these are the 3 topics that we will cover in today's lecture, and we would deal with each of them in quite detail. Now I will begin with the first topic, which is graphical analysis of the transistor amplifier circuits, and I have listed exclusively the reference from which I made my transparencies, and that's CEDRA, and today's lecture has been taken from section 5 and 3. But of course I must warn that different editions of the books, different volumes have different sections, but that should not confuse you, because if you just look for the topic in the index section, I'm sure you will find the relevant piece. The reason that why I'm quoting this, because I've taken some of the figures from this section, and that might help you in relocating the equations and the diagrams from the quoted reference. Before I move on to the actual DC analysis and small signal analysis and graphical analysis, I would like to go back and start from the very beginning of the transistor, not just the amplifier circuit, but the transistor itself. Or even when we go back, we can end up as far back as the calculation of the operation of the diode, that is the PN junction, and then we can move on forward to the transistor and then landing at the amplifier. So let me begin, as I mentioned already, that for the operation of the whether it is the bipolar junction transistor or whether we utilize this bipolar junction transistor in the amplifier circuit, I choose normally the NPN transistor, and the material that I prefer is silicon. Why silicon? Because it has a less leakage current, and we always mention that the voltage drop in the emitter base forward bias junction is only 0.7 volts. And why do we choose NPN? Because N being the emitter region, the mobility of the electron is high. So let me start by explaining the very ABC of the transistor bipolar junction transistor action, and then once we do that, you'll understand the amplifier operation thereon. So I am selecting the NPN transistor for the obvious reason that I have mentioned. Okay, starting like a layman, let me draw a very schematic block representation. Emitter is your N, base is your P, and collector, and then we mark 3 leads as we normally do for the collector, for the emitter on the extreme left side, and this is your base terminal, and this is your collector terminal. So as I already mentioned in my so many lectures before, we have 3 leads: the emitter, the base, and the collector, and you have 2 potential drops between emitter base and base collector. So this is the basic, very basic schematic illustration of an NPN bipolar junction transistor. Now let me rotate it like that a bit and take this side up and the collector side down. Then my transistor would look like something like that, it is now a standing transistor, keeping this again N, and this obviously would be B, and this would be again N, and now this is my base, and this is my, I'm sorry, I should say that I have to take this down and taking this up. Sorry about that. Let's rotate it in an anti-clock direction. So my base, if I rotate it in the anti-clock direction, then my emitter would be downwards, my base would remain in the middle,
because that's in the middle anyway in the physical structure of the transistor, and the top now becomes collector. So by rotating it in the anti-clockwise direction, I bring the emitter portion downwards and the collector goes upward. Now it's very easy for you to realize how do we bias this transistor. Now let me take this transistor in this fashion and redraw in a simple manner using the same technique which I just did. This was my emitter, downward was emitter terminal, here is the emitter terminal, and the center one being the base terminal, and the top one here, top one is my collector terminal. So this symbolic representation is exactly the same as I had drawn for your understanding in a block diagram. Now further I try to bias this transistor. Now before I bias that, biasing of the bipolar junction transistor. Before I bias that, you should remember two principles that I had talked about in more or less each of my lecture. That was, your emitter base junction must always be forward biased and your base collector junction must always be reverse biased. Now you would appreciate that in this configuration I'm going to bias this transistor in the common emitter configuration. Okay. So let's look at the condition number 1. Emitter base junction must be forward biased. So what do you see here? Base is my p-type. So forward biasing means I connect the positive terminal to the base, which is p-type. My emitter is n-type. As you see, it is an n-type emitter. So I connect negative terminal. So this satisfies my requirement that my emitter base junction is forward biased. And because I have applied the bias to the junction between base and emitter, I call this voltage as VBE, the base emitter voltage. Let's come to the second criterion, the second condition of the biasing. Now here it is the collector, it is between the collector and emitter. It has to be reverse biased. My collector, as you see, is n-type, so this has to be connected with the positive terminal of the battery, and emitter here is an n-type, that must be connected to the emitter is n-type, that must be connected to the negative terminal. So this way we connect the common emitter configuration. Again, this is earth, this is grounded because I have taken the common emitter configuration. So the collector would be, in this case, because collector is n-type, it would be positive and this would be grounded. So that's how we reverse bias, and I call this voltage VCE, VCC or VBB. Now the voltage drop between the collector and emitter will be VCE. If you can read it correctly, this is VCE. The voltage drop between base and emitter would be VBE. Now let me improve or add one more thing. I include a base resistor RB because you do not want to pass too much current through your base. Otherwise, as we discussed many times, you might damage your device because you have to keep in mind your power dissipation as well. Similarly, if we want to measure or see the result on the oscilloscope, well, at the moment, since we are only dealing with the DC biases, we don't need to look at our signal, look at our output on the oscilloscope. This is purely DC circuit. So that is how we accomplish the DC biasing of a bipolar junction transistor. So let me call it as DC biasing of a junction transistor. Now this transistor is acting as a current device. And one more thing, so it is acting as a current device, and number two, you are getting large current beta because
the output current IC divided by the input current, which is base in this case, is as large, could be as large as 100 to 200. So when the transistor operates as a current device, which this transistor is acting as a current device because we have biased in such a way that current flows from emitter to base junction because of forward biasing and reaches the collector, and the collector itself does not allow its majority carriers to flow because it is reverse bias. And because we have taken the emitter common in both the biasing loops, so naturally our input would be beta, and beta is only as small as microamp and IC is large, milliamp. So roughly your amplification or the current that you collect in collector at the collector terminal is many times larger than your input current. So in a way it is acting as an amplifier. I have used the word in a way. So even though in a DC operated in a large signal or DC biased transistor, even though you are getting a large current, but yet we do not specify this circuit as an amplifier circuit. So what is then an amplifier circuit? Well, let me explain in a minute. The amplifier circuit is nothing but this bipolar junction transistor, only with the addition. Now with the base, let me redraw it here if I can show you in a minute. I will use the same DC supply because DC supply is essential. Why? Because it is the DC supply which biases your emitter base junction in the forward bias and allows the current to flow from emitter and ultimately reaching the collector junction. Now on top of this DC power supply, I superimpose an AC signal. So now I have, and then the rest of the physics is the same, and the output signal that you draw. So for an amplifier circuit, I make two very small changes. This is a bipolar junction transistor amplifier circuit. Now I'm going to make two slight changes in the same circuit, bipolar junction transistor, which will be later on called the bipolar junction transistor amplifier, bipolar junction amplifier circuit. And those two changes are, number one, I add an AC signal, and number two, that now I connect a load. Since there is not enough space, I can show it here, that I connect a load with the collector at the collector terminal, across which you can draw the output on this. You can monitor the output on the oscilloscope, and because your input is an AC, your output would also follow the same form, that is आपकी सिग्नल की वही शेप होगी जो आपके AC सिग्नल इनपुट की थी, दो फर्क के साथ. नंबर वन, it will be amplified, and number two, there will be phase change. तो ये एक बहुत सिंपल सा सर्किट, जो मैं आपको दोबारा सर्किट तो नहीं कहना चाहिए, एक समरी थी जो मैं आपको शुरू से समझाना चाह रही थी कि आप ट्रांजिस्टर को इस तरह वर्टिकल ड्रॉ करके, वर्टिकल सेगमेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर ड्रॉ करके आपको बहुत आसानी से ट्रांजिस्टर के इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना समझ आ जाएगा, रिवर्स बायस कैसे करना है वो समझ आ जाएगा. सो दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट फॉर द बाइपोलर ट्रांजिस्टर which is acting as a current device, and you can appreciate it is still acting as a amplifier of the DC circuit. लेकिन conventionally amplifier circuits हम उनको कहते हैं कि जिसमें आप AC सिग्नल को superimpose करते हैं. Now the thrust of my point is superposition, कि DC अपनी जगह मौजूद है लेकिन हम उसके ऊपर impose कर रहे हैं AC signal, because it is this very AC signal in which I'm interested in and interested in applying amplifying.
तो एम्पलीफायर सर्किट के दो डिफरेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किए कि एक तो आपके इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है, दूसरा अगर मैंने कहा अगर इफ़ देयर इज़ अ चेंज, क्योंकि वो फेज चेंज डिपेंड कर देगा कि आप कॉमन एमिटर बायसिंग कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की एम्पलीफायर सर्किट की, या कॉमन बेस कर रहे हैं, या कॉमन कलेक्टर कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके एक ऑर्डिनरी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में होता है। तो चूंकि हमारा आज का लेक्चर या इससे पिछला लेक्चर 21 जो था वो एम्पलीफायर सर्किट पे था, तो अगर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट लें तो उसमें फिर फेज रिवर्सल 180 डिग्री का होता है। सो टू समराइज अगेन कि कॉमन एमिटर सर्किट को, कॉमन एमिटर बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्यों प्रेफर करती हूँ, बिकॉज यू गेट अ लार्ज बीटा, एंड व्हाट इज बीटा? बीटा इज एन एम्पलीफिकेशन फैक्टर। सो the highlight of this beginning or summary is that I use NPN transistor and I use common emitter configuration for the amplifier circuit, so that not only I get a gain in the output signal, but I also get a phase reversal. Now before I move on to my proper lecture in the form of formal transparency, let me explain another slight concept, and that concept is, because I have added an AC signal, now my input supply is an AC signal plus the DC bias. Well, there is another important point that I would like to highlight before I move on to my formal lecture on the PowerPoints, and that is because I am defining the amplifier circuits using the bipolar transistor as an amplifier, and I have just explained that the basic definition of amplifier circuits for the bipolar junction transistor is that not only we are using the DC supplies, DC supply as I just mentioned is essential for biasing the transistor so that it can pass, the current can flow. Not only the DC bias, but the amplifier circuit must have also a DC an AC component. So that is my total voltage in the base emitter configuration, in the base emitter loop, input loop or input circuit. Now it is this very point that I would like to mention. Generally the symbols are that for DC biases, both for the input as well as output loop, for DC biases I will use the upper cases, that is capital letters, let's say by base emitter voltage, or similarly base collector voltage, or base or collector emitter voltage, right? So both the subscript as the voltage symbol, they are capital. These are DC biases. For pure AC signals, I will be using both the symbol current, if it is collector current or base current or emitter current, both are small letters. The current for the AC signal, not only the symbol of the current is a small letter, but the terminal from which we collect the current, that is also a small letter. But when we combine the two, that is the total current or the total voltage, total current for example, the total current for example would therefore be a sum of the DC current component I should say, plus the AC current component. और DC का जैसे मैंने अभी बताया, DC का सिंबल मैंने लिया था कैपिटल I और कैपिटल B, मसलन अगर बेस की करंट मैं निकालना चाह रही हूँ तो DC के लिए दोनों चीज़ें आपकी अपर केस होंगी, प्लस अब क्या आ गया, अब हमारी AC सिग्नल हमने ऐड किया, तो AC के लिए दोनों चीज़ें आपकी स्मॉल हैं, I भी स्मॉल है करंट का और बेस का B भी स्मॉल है। अब जब हमने टोटल लिखा तो टोटल में हम क्या करेंगे कि I चूँकि AC, अब टोटल आपकी जो आएगी वो भी AC होगी, उसकी फॉर्म ये मैंने बताया था
कि जब हम सुपर इम्पोज करते हैं एम्पलीफायर इनपुट सर्किट में, हम डीसी के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं एसी, तो जो आपके एसी की फॉर्म होती है, वेव फॉर्म होती है, वो उसी तरह आपको आउटपुट सिग्नल में फॉर्म नज़र आएगी, तो वो एसी होगी, सिवाय दो फ़र्कों के कि नंबर 1, एक तो वो एम्पलीफाई हो जाएगी और कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में फेज रिवर्सल हो जाएगा, मगर होगी वो शक्ल में, फॉर्म में वो एसी होगी। तो लिहाजा ये रही तो एसी, तो ये मैंने छोटा आई लिखा है एसी की मुनासबत से, जैसे मैंने यहाँ लिखा है लोअर केस, मगर बेस था तो वो मैं कैपिटल लिख रही हूँ क्योंकि ये टोटल है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये आज के मेरे लेक्चर की हर स्लाइड में आएगा और आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने इतनी एक्सप्लिसिटली बताया है। एक स्लाइड भी मैंने आगे चल के इंक्लूड की है। सो लेट मी समराइज अगेन कि डीसी बायसेस को मैं कैपिटल यानी अपर केसेस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एसीज को दोनों लोअर केस हैं, दोनों स्मॉल हैं, जो करंट का सिंबल आई होता है, वोल्टेज का सिंबल वी है, बेस की है या जो भी है उसको मैं स्मॉल लेटर से इंक्लूड शो कर रही हूँ। और जब टोटल लेंगे तो टोटल में जाहिर है आपके एसी और डीसी दोनों शामिल हैं, तो वहाँ पे एक कैपिटल, जो टोटल में एक अपर केस आ जाएगा और जो क्वांटिटी है करंट की हो या वोल्टेज की हो वो स्मॉल आ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने इस स्लाइड में हाईलाइट किया, ताकि आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो फिर आपको मुश्किल ना पेश आए। नाउ आई कैन कंटिन्यू विद माय प्रॉपर लेक्चर सो दैट यू कैन फॉलो व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट। तो जो मेरा सबसे पहली स्लाइड है वो मैं आज बात करूंगी एम्पलीफायर सर्किट की। जैसे मैंने अभी शुरू किया कि मैंने एक डीसी बायसिंग ली ट्रांजिस्टर की, तो अब आप राइट हैंड साइड पे जो आपको फिगर बी नज़र आ रही है, दैट्स अ प्योर डीसी बायस्ड ट्रांजिस्टर सर्किट, जिसमें आपने देखा VBE जो मैंने बायसिंग यूज़ की है। अगेन मैंने जैसे अभी पहली स्लाइड में बताया कि NPN को मैं हमेशा एग्जाम्पल के तौर पे प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इमिटर जो है एन टाइप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इमिटर में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऑब्वियसली दिस विल बी एन NPN ट्रांजिस्टर एंड एरो हेड इंडिकेट्स दैट यस इट इज़ एन NPN ट्रांजिस्टर। इसको मैंने फॉरवर्ड बायस किया है, तो P चूँकि मेरा बेस मेरा चूँकि P टाइप है, P टाइप को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया। इन शॉर्ट दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो आपको सर्किट नज़र आ रहा है, दैट्स अ सिंपल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब इस सर्किट को लेके इसमें बिल्कुल वही दोनों चीज़ें हो रही हैं, इनपुट से करंट चल रही है, आउटपुट में आपको IC करंट, आउटपुट करंट मिल रही है। शुरू का जंक्शन इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, आखिरी इमिटर आउटपुट जंक्शन आपका रिवर्स बायस है। अब आपको राइट पे जो ए साइड में आपको फिगर ए जो सर्किट ए नज़र आ रहा है, दैट नाउ इज़ एन एम्पलीफायर सर्किट। तो ट्रांजिस्टर को, किसी सिंपल ट्रांजिस्टर को जो कि बी में मैंने दिखाया है, ए में कन्वर्ट करने के लिए यानी एम्पलीफायर सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आई हैव सिंपली एडेड एन AC सिग्नल VBE। अब आप गौर से अप्रिशिएट कर सकते हैं उन सिंबल्स को जो मैंने अभी पिछली ट्रांसपेरेंसी में आपको समझाए कि प्योर DC के लिए मैं दोनों अपर केसेस यूज़ कर रही हूँ, कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रही हूँ, और AC सिग्नल के लिए मैं स्मॉल दोनों लोअर केसेस यूज़ कर रही हूँ, और दोनों आपको लिखे नज़र आ रहे हैं। इधर आप देखिए आउटपुट सिग्नल में मैंने एक रिवर्स बायस के लिए पावर सप्लाई VCC लगाई है। तो ये आपको एक सिंपल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से एक एम्पलीफायर सर्किट हमने बना लिया बाय सिंपली एडिंग एन AC सिग्नल या सुपर इम्पोजिंग ऑन टॉप ऑफ DC एन एडिशनल AC सिग्नल। तो ये आपका सर्किट बाइपोलर जंक्शन एम्पलीफायर सर्किट बन गया। अब वही चीज़ मैंने दोबारा दिखाई है आपको कि अब इस सर्किट को मैंने रिवर्स करके दिखा लिया है किसी और मकसद के लिए, कि जब मैं एम्पलीफायर सर्किट को, जो कि अब मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे है, मैं इसकी एनालिसिस करना चाहूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले शुरू में इसी चीज़ को फ्लिप करके दिखाया था, नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट वी आर डूइंग। देखिए आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर हमने ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर सर्किट के तौर पे यूज़ करना है तो पहले हमें उसका DC ऑपरेशन स्टडी करना होगा, और DC ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक लोड लाइन ड्रॉ करते हैं और Q पॉइंट सिलेक्ट करते हैं।
क्यू पॉइंट हमें ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए कि वो लोड लाइन के तकरीबन मिडल में रहे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट करके वेरिएशन अगर आपके हो रही हैं बेस करंट में, ये किसी वजह से VBE की वजह से या VCE की वजह से, टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से अगर क्यू पॉइंट में वेरिएशन हो रही है, तो आपका क्यू पॉइंट स्विंग करके या तो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, तो फिर आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो आउटपुट है वो क्लिप हो सकता है, या अगर स्विंग करके नीचे कट ऑफ रीजन में आ जाए तो आपका लोअर पोर्शन क्लिप हो सकता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले ऐसा DC ऑपरेटिंग पॉइंट, तो एम्फसाइज मैं कर रही हूँ DC ऑपरेटिंग पॉइंट। DC ऑपरेटिंग पॉइंट हम कहाँ से निकालते हैं, लोड लाइन ड्रॉ करके ऑन द आउटपुट कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक से। वो हमें 3 पैरामीटर देता है, द इनपुट करंट, बेस करंट and the VBE that is base emitter forward voltage and VCE जो कि रिवर्स वोल्टेज है, क्योंकि इन तीनों पैरामीटर से आपका क्यू पॉइंट एस्टैब्लिश होता है। तो सर्किट हमारा है A विच इज़ एन एम्पलीफायर सर्किट। इसको हमने इक्विवेलेंट या ऐसे डिफाइन करना है जैसे कि ये कोई DC सर्किट है, तो उसके लिए सिंपली मैंने क्या लिखा है, द सर्किट विद द सिग्नल सोर्स VBE एलिमिनेटेड फॉर DC बायस एनालिसिस। तो बेसिकली हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं एम्पलीफायर सर्किट का, हम उसमें से रिमूव उसको सिंपल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर नहीं बना रहे, बल्कि उसका एक DC एनालिसिस करने के लिए हम अस्यूम कर रहे हैं कि जैसे आपका सोर्स AC सोर्स नहीं है, उसको आपने शॉर्ट किया हुआ है। तो ये एक DC एनालिसिस के लिए उसी को मैंने लिख दिया। और जैसा मैंने अभी बताया कि जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं, कि इसका DC एनालिसिस का मकसद क्या है, इसका मकसद है कि एक ऐसा क्यू पॉइंट निकले, डिटर्मिन कर सकें आप कि जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो अलोंग द लोड लाइन, ताकि आपका जो वेव फॉर्म है, आउटपुट वेव फॉर्म सिग्नल की है, वो क्लिप ना हो। सो व्हाट वी आर मोस्ट, लेकिन इसमें हम ये नहीं मकसद कि आप सिर्फ DC वैल्यूज़ को प्रेफर कर रहे हैं, या DC वैल्यूज somehow have become so important. No, the idea is that yes, we are determining the DC values from determining the Q point, DC values IB, DC VBE and DC VCC। तो ये सही है कि हम DC वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, यानी Q पॉइंट को निकाल के ये तीनों DC वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, लेकिन ये सारा DC एनालिसिस हम कर क्यों रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आप वो वैल्यूज़ Q पॉइंट की चूज़ करें, और Q पॉइंट टू रिपीट फॉर द nth टाइम। Q पॉइंट आपको IB, VCE और VBE दे रहा है, तो ये तीनों वैल्यूज़ हम DC वैल्यूज़ ऐसी चूज़ करें, या इस ऐसे Q पॉइंट पर ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाएं कि जो आपने इनपुट में AC सिग्नल दिया, जो अभी मैंने आपको दिखाया, वो जब आउटपुट में जाके आप उसकी वेव फॉर्म देखें तो वो अनडिस्टॉर्टेड हो, अनक्लिप्ड हो। तो यही चीज़ मैंने बॉटम पॉइंट में लिखी है कि एक्चुअली Q पॉइंट को इस्टेब्लिश करने का, निकालने का असल मकसद ये है कि वी आर इंटरेस्टेड इन सीइंग एन अनडिस्टॉर्टेड अनक्लिप्ड AC सिग्नल। तो वी आर इंटरेस्टेड इन AC सिग्नल इटसेल्फ, तो उसकी वजह से हम DC एनालिसिस कर रहे हैं अपने एम्पलीफायर सर्किट का, जिसको मैंने शुरू में अभी स्लाइड में दिखाया। तो थोड़ा सा मैं रिव्यू कर लूँ कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म करती क्या है। वो साइनोसाइडल वेव फॉर्म ये करती है कि जैसी वेव फॉर्म आपकी, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि जो आप इनपुट में AC सिग्नल लगा रहे हैं DC के साथ, तो वही वेव फॉर्म, वैसी ही वेव फॉर्म आपको आउटपुट सिग्नल में मिल रही है। फ़र्क सिर्फ कहाँ पे होगा, एम्पलीट्यूड में होगा। क्यों? क्योंकि उसी मुनासबत से हम इसको एम्पलीफायर सर्किट इसीलिए कह रहे हैं कि स्मॉल थोड़े से एम्पलीट्यूड के साथ, किसी भी एम्पलीट्यूड जो आपका कम हो, इनपुट देंगे तो आपको उससे लेस से 10 टाइम्स मैग्नीफाई हो के आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जब आप ट्रांजिस्टर को बायस करते हैं तो फिर एक और चीज़ होती है, दैट इज़ 180 डिग्री फेज़। तो हम ये कह रहे हैं कि साइनोसाइडल एनालिसिस में आपका एम्पलीट्यूड एंड फेज़ में चेंजेस आ सकती हैं। एनी टाइम वेरिंग सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ साइनोसॉइड्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज एंड फेजेस। तो अगर आपके मल्टीपल
जैसे कि कई दफ़ा होता है कि आप मोर देन वन सिग्नल अगर लगाएं, आपके सर्किट अगर दो डायोड्स पे मुश्तमिल हो, ऐसे एम्पलीफायर सर्किट जिसमें एक से ज़्यादा डायोड हो, एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल आ रहे हों, तो उनके एम्पलीट्यूड भी आप उसी तरह डील करेंगे जैसे किसी भी डीसी डीसी एनालिसिस में जब आप सम करके निकालते हैं तो वो दोनों भी सम हो जाएंगे और उनके फेजेस भी इसी तरह एड अप हो जाएंगे। तो इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम बिल्कुल उसी तरह वैलिड रखते हैं जैसा कि आप डीसी बायसेस में रखते हैं। तो साइनोसाइडल वेव फॉर्म में यानी टाइम वेरिंग सिग्नल के भी एडिशन के वही प्रिंसिपल्स होते हैं, नॉट ओनली इन द एम्पलीट्यूड बट इन द फेज एज वेल। अब मैं आ जाती हूँ ग्राफिकल एनालिसिस की तरफ। जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था दैट आवर मेन इंटरेस्ट in determining the DC values of the transistor, operating values of the transistor, जिसको हम Q point कहते हैं, वो ये हैं कि जब आप एम्पलीफायर के तौर पे सर्किट को इस्तेमाल कर रहे हों तो ये Q वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि आपके सिग्नल क्लिप ना हो, ना पॉजिटिव पीक में सैचुरेशन रीजन में ना जाए Q पॉइंट स्लाइड करके, ना स्विंग करके कट ऑफ रीजन में जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम डीसी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो चलें, जो पहली टेक्निक है वो है ग्राफिकल एनालिसिस। अब ये सर्किट मैंने फिर उसी तरह रिप्रोड्यूस कर दिया है। दिस इज़ एन एम्पलीफायर, वेरी सिंपल एम्पलीफायर सर्किट। इसमें एक और चीज़ इजाफी आपको नज़र आ रही होगी जो कि पिछले सर्किट में मैं नहीं दिखा सकी थी, वो ये है कि बेस पे मैंने एक रजिस्टर आरबी भी लगा दिया है। आरबी रजिस्टर का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया, यू डू नॉट वांट टू पास और अलाउ अ लार्ज बेस करंट, अदरवाइज आपको आउटपुट में भी लार्ज कलेक्टर करंट मिलेगी एंड यू माइट be passing large values of the transistor might be allowing very large power dissipation and आपकी पावर डिसिपेशन की जो रेटिंग है अगर उससे ज़्यादा पावर आप सर्किट में से गुजार दें, यू विल एंड अप डैमेजिंग योर ट्रांजिस्टर और डिवाइस। तो इसलिए आरबी हम रेजिस्टर लगा देते हैं टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट दैट गोज इनटू द बायस फ्रॉम दिस डीसी voltage VBB and the input signal that you have superimposed on the DC voltage। इसी तरह आपने आउटपुट सर्किट में RC लगाया हुआ है, RC या RL लोड कह लें, ये वो लोड है, ये वो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस आप आउटपुट करंट को मॉनिटर कर रहे हैं ऑन द ऑसिलोस्कोप। अब ग्राफिकल एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, दो कर्व्स होती हैं। एक आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रही है जो कि इनपुट लूप की है। इनपुट लूप में आपको क्या दो पैरामीटर मिलते हैं, क्योंकि इमिटर को हमने कॉमन किया हुआ है, तो इनपुट लूप में आपके पास दो गुड पैरामीटर्स हैं, द बेस करंट, और बेस करंट आपको कैसे हासिल हो रही है, VBE। जब आप VBE को चेंज करें यू गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ voltage drop across the base emitter diode। Let me go back to this slide again। ये देखिए, इस सर्किट को देखें, आप डीसी वोल्टेज VBE को जब वेरी करते हैं तो रजिस्टर RB, बेस रजिस्टर RB तो आपने फिक्स वैल्यू का लगाया हुआ है। तो बाय कंट्रोलिंग द बेस करंट VBB या बाय चेंजिंग द बेस करंट VBB, बेसिकली व्हाट यू आर चेंजिंग इज द करंट दैट गोज इनटू द बेस, और उस करंट को हमने सिंबल दिया IB। तो IB करंट जो है वो VBE से कंट्रोल हो रही है, और इसी चीज़ को मैंने प्लॉट कर लिया है IB वर्सेस VBE, एंड दैट इज़ आवर फेमस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट डायोड, द फॉरवर्ड बायस डायोड बिटवीन इमिटर बेस। अब इसी तरह मैंने लोड लाइन ड्रॉ की। लोड लाइन ड्रॉ करने का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक दफ़ा आप करंट को ज़ीरो कर लें तो जो आपकी किरचॉफ वोल्टेज लॉ से इक्वेशन बनती है वो आपको दूसरा पॉइंट दे देगी VBB, या IB पर इंटरसेक्शन दे देगी। तो ये हम एक लोड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इसकी स्लोप जो है वो आप देख रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ द बेस रजिस्टर जो हमने लगाई है, और स्लोप नेगेटिव है। तो आप ये सब चीज़ें समझ लें कि हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पर एक लोड लाइन ड्रॉ की, उस लोड लाइन से हमने स्लोप निकाली, स्लोप इज़ 1/R। इस स्लोप को आगे चल के मैं ट्रांस कंडक्टेंस कहूँगी, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज
ट्रांस कंडक्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट्स ओम्स होती हैं। तो ये चूंकि रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो ऑब्वियसली ट्रांस कंडक्टेंस या उसको सिंबल हम जी देते हैं, उसकी वैल्यू, उसकी यूनिट्स हुई मो, या एक और यूनिट्स हैं सीमेंस। तो ये देखिए, ये वही सर्किट है जिसको मैं बार बार रिप्रोड्यूस कर रही हूँ। इट इज़ द सेम सर्किट एज आई हैड ड्रॉन हियर। तो इस सर्किट की जब मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करती हूँ, अभी जैसे मैंने बताया क्या करने के लिए, क्यू पॉइंट निकालने के लिए, तो ये क्यू पॉइंट मैं ग्राफ ड्रॉ करके निकाल रही हूँ। दैट्स व्हाई द हेडिंग ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट बाय यूजिंग अ ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आपको यहाँ सारी वोल्टेजेस भी नज़र आ रही हैं। अब चूंकि मैंने इस सर्किट में वोल्टेज को, एसी सिग्नल को फ़िलहाल ज़ीरो अस्यूम किया है, तो फिर इसमें मैं ये कह रही हूँ कि ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डीसी बेस करंट इन द सर्किट। तो इस वक्त हमने अस्यूम किया हुआ है कि हमारा एसी सिग्नल हमने उसको ज़ीरो लिया हुआ है। तो इस डीसी कर्व से, डीसी इनपुट कर्व से या लोड लाइन ड्रॉ करने के बाद ऑन द इनपुट कर्व हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। इससे हमें डीसी बायस पॉइंट मिल गया, यानी आईबी मिल गया और वीबीई मिल गया। चूंकि ये कर्व सिर्फ इनपुट कर्व है, इनपुट लूप की है, तो इसमें वीसीई मौजूद नहीं है। तो थर्ड पॉइंट जो क्यू पॉइंट के लिए एसेंशियल होता है, वो होता है आईबी, वीबीई एंड वीसीई। तो इस वक्त हमें वीसीई नहीं हमारे पास निकला, वो हम आगे चल के अगली स्लाइड में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से निकालेंगे। तो अभी आप कंसंट्रेट कीजिए कि ये सिर्फ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, और यहाँ से मेरे पास दो ऑपरेटिंग पॉइंट, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट निकल आए, विच इज़ आईबी द बेस करंट, डीसी बेस करंट, और डीसी बेस इमिटर वोल्टेज, वो वोल्टेज ड्रॉप जो इनपुट लूप में बेस और इमिटर जंक्शन के दौरान वीबीई वोल्टेज के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप है। और इसकी क्या कंडीशन है कि हमने इनपुट सिग्नल, एसी सिग्नल को ज़ीरो लिया है, तो फिर हमने डीसी बायस पॉइंट आईबी और वीबीई की क्यू वैल्यू की दो वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब जैसा मैंने अभी कहा था कि क्यू पॉइंट जो है, डीसी ऑपरेटिंग क्यू पॉइंट जो है, उसके लिए तो तीन पैरामीटर चाहिए होते हैं ताकि आप कंप्लीट तौर पे क्यू पॉइंट को डिफाइन कर सकें। वन इज़ ए बी, दूसरा इज़ वी बी ई, तीसरा है वी सी ई। तो मैं वापस अगर मैं वापस जाऊं, ये देखिए, तो दो पॉइंट तो हमने निकाल लिए। आई बी भी आपको डैश्ड लाइन में नज़र आ रहा है इस कर्व पर, और वी बी ई भी नज़र आ रहा है। अब तीसरा मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से निकालूंगी। तो देखिए, यहाँ फिर आपको दो पॉइंट, क्यू से दो पॉइंट मिल गए। अब आपको आई बी भी मिल गया है, जहाँ मैंने क्यू ड्रॉ किया, आई सी भी मिल गया है, और वी सी ई भी मिल गया है। तो by drawing the collector characteristic curve, we can get all the 3 points which uniquely define the Q for this particular transistor. तो इसमें हमें IB की वैल्यू मिल गई, VCE की वैल्यू मिल गई, और IC की वैल्यू मिल गई। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि ये हमने सिर्फ अस्यूम किया हुआ है, हमने DC एनालिसिस किया हुआ है। हालांकि हमारे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में एसी सिग्नल मौजूद था, लेकिन हमने उसको शॉर्ट करके या उसको ज़ीरो अस्यूम करके ये वैल्यूज़ निकाली हैं। तो हैविंग डिटरमिन्ड द डीसी वैल्यूज़ और द क्यू वैल्यूज़ of the transistor, then we can write this in the following manner, क्योंकि आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। तो ये याद रखिए कि ट्रांजिस्टर के किसी भी ऑपरेशन में, चाहे आप उसको एम्पलीफायर सर्किट के तौर पे यूज़ करें, फिर उसका ग्राफिकल एनालिसिस करें, या स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करें, स्मॉल सिग्नल को आगे चल के मैं दोबारा वाज़े करूँगी, किसी भी लूप में जहाँ आपके बाइसेस लगी हुई हों, तो उसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, उसमें किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है। तो इस आज के लेक्चर में आपने देखा कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, जहाँ हम ट्रांजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं एज एन एम्पलीफायर, आपके दो लूप्स हैं, लिहाजा आपको करंट और वोल्टेज की बिल्कुल इसी तरह किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ लिखने हैं। अब इस स्लाइड में आपको वोल्टेज लॉ कलेक्टर यानी आउटपुट सर्किट का मैं लिख रही हूँ। तो टोटल आउटपुट वोल्टेज अगर आप देखें
तो आपको कहाँ वोल्टेज नज़र आ रही है? VCC इज़ द DC बायस दैट यू हैव कनेक्टेड इन द आउटपुट सर्किट ओनली। आप गौर से ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, इस पहली इक्वेशन को जो कि मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज़ करके लिखी है। देखिए, लेट मी गो बैक टू द स्लाइड वंस अगेन, सर्किट स्लाइड वंस अगेन। आप इस लेफ्ट साइड के सर्किट को देखिए कि आपको इनपुट लूप में तो दो वोल्टेजेस नज़र आ रही हैं, एक DC वोल्टेज VBB और एक AC सिग्नल VI, इनपुट सिग्नल VI। लेकिन अगर आप आउटपुट लूप में देखें तो आपको सिर्फ एक सिंगल बायस नज़र आ रही है VCC, एंड दैट सिंगल बायस इज़ द DC बायसिंग which is needed to reverse bias the collector base junction या कलेक्टर इमिटर, चूँकि इमिटर कॉमन में है, सो कलेक्टर इमिटर या बेस कलेक्टर के बीच में जो आपके बायस है दैट इज़ रिवर्स बायस, और सिर्फ DC नज़र आ रही है। अब गौर से इसी सर्किट को देखिए कि इस आउटपुट लूप में जो VCC की डिवीज़न है ये कहाँ कहाँ हो रही है? एक तो लोड के अक्रॉस होगी RC, लेकिन इस लोड में याद रखें जो अब करंट चल रही है वो टोटल करंट होगी, जिसमें कि AC और DC दोनों कंपोनेंट शामिल है, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर होगी। तो यही दोनों वोल्टेज ड्रॉप आउटपुट लूप में ये मैंने लिख दी। ये अब हम वापस उसी पे चले जाते हैं। तो आपकी जो करंट चल रही है, यानी आपकी जो AC करंट है, प्योर AC करंट जिसमें DC नहीं शामिल, जैसा मैंने अभी बताया, तो उसके सिंबल हम IC लिखते हैं, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ AC सिग्नल जो आपकी AC ओनली AC करंट होगी वो आपको लिखी जाएगी IC। सो दैट्स द करंट ड्यू टू AC ओनली, जब आपने इसमें अभी ऐड नहीं किया हुआ, सुपर इम्पोज अभी आपने नहीं किया हुआ। R आपका रेजिस्टेंस है, लोड है आउटपुट सर्किट में। VCE जो है वो आपकी, चूँकि देखें सिग्नल की फॉर्म तो आपकी वही आएगी AC, क्योंकि आपने उसको निकाल तो नहीं दिया सर्किट से, लेकिन चूंकि अभी हम सुपरपोजिशन नहीं कर रहे, AC और DC का सम नहीं ले रहे, हम एक ही कंपोनेंट लिख रहे हैं, तो इसलिए मैं ये दोनों चीज़ों को बार बार हाईलाइट कर रही हूँ कि वी आर टेकिंग स्मॉल v एंड कैपिटल सबस्क्रिप्ट CE, which means it's only the superposition of the input as well as DC as well as AC सोर्सेस। तो ये आपकी टोटल वोल्टेज होगी आउटपुट सर्किट में। तो इसको रीअरेंज करके मैंने सिंपली एक ही किरचॉफ लॉ को जो टॉप पे लिखा हुआ उसको रीअरेंज करके मैं नीचे पहुंच गई। तो ये नीचे वाली आपको चीज़ दे रही है दी टोटल आउटपुट करंट, द टोटल आउटपुट करंट इन द कलेक्टर सर्किट, और ये हमारी VCE और यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से ये मैंने टोटल करंट निकाल ली। तो इस तरह हमने दोनों एनालिसिस कर लिए कि DC के भी और AC वैल्यूज़ भी निकाल ली आउटपुट सर्किट में, और DC वैल्यूज़ भी निकाल ली इनपुट सर्किट से। ये नॉमेनक्लेचर मैंने दोबारा आपके लिए लिखा है, इसको गौर से देखिए कि जो आपकी सिर्फ प्योर AC सिग्नल है, सिर्फ प्योर AC सिग्नल है, उसमें दोनों चीज़ें मैंने स्मॉल लिखी हैं, द करंट सिंबल I और जो आपका टर्मिनल है यानी बेस, वो दोनों चीज़ें स्मॉल है। फिर DC के लिए मैंने दोनों लेटर्स, करंट का सिंबल I और बेस का सिंबल B, दोनों कैपिटल लिखे हैं। लेकिन नीचे वाली बॉटम डायग्राम में आप देखें जहाँ मैंने सुपर इम्पोज किया है AC सिग्नल को ऑन रेड लाइन, रेड कांस्टेंट लाइन जो कि DC करंट थी, तो मैंने I यानी करंट का सिंबल स्मॉल लिया है, लेकिन बेस यानी टर्मिनल को मैंने कैपिटल लिखा है। तो स्मॉल और कैपिटल हों तो वो टोटल होती है। अब हम दोबारा वापस जाके देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो मैं अब टोटल सुपरपोजिशन की बात कर रही हूँ, जहाँ आपको सबस्क्रिप्ट लोअर केस जो है वो जो कैपिटल अपर केस नज़र आए वो है टोटल जाहिर कर रहे हैं कॉमन इमिटर के दरमियान, और AC सिग्नल को जाहिर कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं इस ट्रांसपेरेंसी में आपको टोटल करंट इन द आउटपुट लूप निकालना दिखा रही हूँ, जबकि पहले मैंने आपको
सिर्फ डीसी कंपोनेंट दिखाए थे। अब उसी ग्राफिकल एनालिसिस को मैं कंटिन्यू करती हूँ सिंबल्स को, नॉमेनक्लेचर्स को डिफाइन करने के बाद, कि राइट पे मैंने वही रिप्रोड्यूस कर दी है आपकी इनपुट कर्व, और लेफ़्ट पे मैंने आपके दोबारा रिप्रोड्यूस कर दी है आउटपुट कर्व, और साथ में मैंने सुपर इम्पोज करके आपको इनपुट और आउटपुट एम्पलीफाइड एंड इनपुट्स भी सिग्नल दिखाए हैं। Unfortunately, I have not shown you a sine wave. I'm showing you a sawtooth type of voltage. तो आप दोनों में ये देख सकते हैं कि Q पॉइंट की हमारी वेरिएशन लिमिटेड है only up to a certain region, ताकि आपका वेव फॉर्म क्लिप ना हो। तो this has been redrawn so that you can appreciate कि आपका Q वैल्यू की स्विंग कितनी अलाउड है, और आपकी लिहाजा Q वैल्यूज़ की वोल्टेजेस और Q पॉइंट जो है आपका रिस्ट्रिक्टेड है, सर्टन वैल्यूज़ ऑफ IB, सर्टन वैल्यूज़ ऑफ IC और सर्टन वैल्यूज़ ऑफ VCE, और अगर आपका Q पॉइंट इन वैल्यूज़ के बियॉन्ड स्विंग कर जाए तो आपकी वेव फॉर्म क्लिप हो सकती है। तो इफेक्ट ऑफ बायस पॉइंट लोकेशन ऑन अलाउबल सिग्नल स्विंग, उसी चीज़ को मैंने दोबारा रिप्रोड्यूस कर दिया है कि अगर हम प्रॉपर वैल्यूज़ Q पॉइंट की चूज़ नहीं करेंगे तो हमारी जो आउटपुट सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। लोड लाइन A को देखिए पहले। लोड लाइन A रिजल्ट्स इन बायस पॉइंट QA विद कॉरस्पॉन्डिंग VCE विच इज़ टू क्लोज टू VCC and thus limits the positive swing of VCE। तो अब ये देखिए इस Q पॉइंट का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि इस टू क्लोज टू टोटल वैल्यू ऑफ VCE, यानी आप इसको काफ़ी, अगर ये नीचे आ जाए तो हम कट ऑफ रीजन में पहुंच सकते हैं और लोअर पार्ट ऑफ द नेगेटिव पीक साइकिल की क्लिप हो सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम Q पॉइंट को चूज़ करें और Q पॉइंट बहुत क्लोज है सैचुरेशन रीजन के, तो सैचुरेशन रीजन से वो फिर अपर पार्ट आपका क्लिप हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इन दो पॉइंट्स को, ये दो पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह के हैं कि इसके दरमियान आप ना वैल्यू चूज़ करें, बल्कि समवेयर मिड बिटवीन आपका ऐसे लोड लाइन ना चूज़ करें, इनके मिड बिटवीन होना चाहिए ताकि हमारी अनडिस्टॉर्टेड नज़र आए वेव फॉर्म आउटपुट सर्किट में। Having discussed the determination of the DC operating points, that is the Q point, हम ऐसा Q point select कर लें कि फिर जब आप उसके ऊपर DC वैल्यूज़ के ऊपर सुपर इम्पोज करें AC सिग्नल तो आपको अनडिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म मिले आउटपुट सर्किट में। अब हम एक और नए टॉपिक की तरफ आते हैं, वो ये है कि हम सर्किट को बाइसिंग किस तरह करें, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को, जिसको आप एम्पलीफायर सर्किट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी हम बाइसिंग की को स्टडी कर लेते हैं। और अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि आज का लेक्चर एक्सक्लूसिवली मैं सेड्रा से मैंने रेफरेंस पॉइंट बनाया है उसको बुक को, तो मैंने ख़ास तौर पे आपके लिए सेक्शन भी लिख दिया। ये सेक्शन लिखना इसलिए ज़रूरी है कि दिस इज़ वन ऑफ It's a very remarkable book in the sense it gives you a lot of exercises, lot of solved problems, और problem solving एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आपके जहन में जो comprehension है सब्जेक्ट की, टॉपिक की, वो बहुत क्लियर हो जाती है। So it's my personal emphasis कि आप ज़रूर जब टेक्स्ट ख़ास तौर पे सेक्शन दिए होते हैं तो प्लीज़ डू try to solve these exercises, do try to understand those problems which are solved. So at least solved problems को तो आप कम से कम कीजिए ताकि जो जो चीज़ें इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं उसको आप न्यूमेरिकल या एनालिसिस के तौर पे भी उसका आप एनालिसिस भी कर सकें। तो अब मैं अगला टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है दैट इज़ बाइसिंग। तो पहले क्या मेरी हेडिंग है कि बाइसिंग विद वोल्टेज एंड देन बाइसिंग विद वोल्टेज सोर्सेज एंड देन बाइसिंग विद करंट सोर्सेज। सो लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड। अब जो लेफ़्ट पे आपको सर्किट नज़र आ रहा है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट, इसमें मैं फिक्स्ड बाइस के साथ एक ही बाइस को मैंने चूज़ किया है, सिंगल पावर सप्लाई को चूज़ किया है, जो न सिर्फ आपके
बेस को, बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रही है, बल्कि आपके बेस कलेक्टर जंक्शन को या कलेक्टर इमिटर जंक्शन को भी रिवर्स बायस कर रही है। याद रखिए, अगर आपको याद आए तो जब हम ट्रांजिस्टर को स्टडी कर रहे थे, नॉट एज एन एम्पलीफायर सर्किट बट जस्ट सिंपल ट्रांजिस्टर को जिसमें डीसी वोल्टेजेस सिर्फ लगाई हुई थी, तो वहाँ भी हमने ये टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मुझे वो लेक्चर नंबर तो इस वक्त याद नहीं, बट वी हैड डन दैट इन क्वाइट डिटेल, और उसमें हमने एक हेडिंग दी थी, द पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग बाय यूजिंग अ सिंगल पावर सप्लाई। तो ये एग्जैक्टली वही सर्किट है कि यहाँ आपको दो रेजिस्टेंसेस RB1 एंड R2 जो कि बेस के ऊपर हमने लगाई हैं, ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट यूज़ कर रही हैं। तो यहाँ मैंने हेडिंग दी है कि डायग्राम ए जो है, जो सर्किट ए है, ये आपकी एक सिंगल पावर सप्लाई जो कि फिक्स्ड है VBE, उससे आप वोल्टेज ड्रॉ कर रहे हैं। वाई देयर इज़ ए सिंगल पावर सप्लाई VCC, तो जो आपके VBE में वोल्टेज जा रही है, RB1 और RB2 भी आपने फिक्स वैल्यूज़ ली हुई हैं, तो लिहाजा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल के जो आपके बेस को वोल्टेज जा रही है वो एक फिक्स वैल्यू होगी और सिंगल पावर सप्लाई है। दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं, यहाँ आपने करंट को फिक्स कर दिया है। तो ये एक ही चीज़ है कि आप जब एक पावर सप्लाई, एक वोल्टेज फिक्स कर देते हैं तो आपकी बेस की रेजिस्टर, अब RB आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट से निकाल लिया तो आपकी बेस की करंट भी फिक्स हो गई। So this is one of the manner or technique in which we can bias an amplifier circuit, और of course आपकी जो AC सिग्नल है वो तो अपनी जगह मौजूद है। यहाँ हम सिर्फ DC सिग्नल की बात कर रहे हैं, बाइसिंग की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हम ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में, ट्रांजिस्टर सिंपल ऑपरेशन में आप डिफरेंट बाइसिंग करते थे, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते थे। बेस पे पोटेंशियल डिवाइडर बना दिया, इमिटर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ले ली, फिर आपने इमिटर रेजिस्टेंस लगा दिया, बेस रेजिस्टर लगा दिया। तो ये डिफरेंट तरीके से हम बाइसिंग को कंट्रोल करते हैं। ये वही चीज़ है, इस सर्किट को मैंने दिखाया है जैसे पहले था। तो इसमें हमने क्या किया है कि बोथ रिजल्ट इन वाइड वेरिएशंस इन IC एंड हेंस इन VCE एंड देयरफॉर आर कंसिडर्ड टू बी बैड। अब चूंकि इसमें आपके इस अरेंजमेंट में, इस फिक्स्ड बायस में और फिक्स करंट सोर्स में, ये एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है और इसमें इमिटर को हमने कॉमन लिया हुआ है। और मैंने पहले आपको बताया था जब कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो हो जाता है वो बीटा होता है। बीटा में चूँकि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से काफ़ी वेरिएशन आ सकती हैं, तो लिहाजा आपका Q पॉइंट में वेरिएशन आती हैं, लिहाजा आपकी IC और VCE में वेरिएशन आ सकती हैं। तो इस लिहाज से इस तरह की बाइसिंग में पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट इन द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ये यूज़ तो होते हैं, लेकिन इसमें बीटा जो है वो आपका अनस्टेबल होता है। तो इस वजह से ये इतना प्रेफर्ड, ये बाइसिंग का मैनर इतना प्रेफर्ड नहीं है। तो इसी चीज़ को जो मैंने आपको सर्किट्स को अब यहाँ दिखाया है, इसमें हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हमने बनाया हुआ है, और एक और एडिशन मैंने किया हुआ है कि मैंने इमिटर पे रेजिस्टेंस RE लगा दिया है। So now I have a potential divider circuit at the base, then I have a load RC जिसके अक्रॉस आप आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं, and then I have an emitter resistance RE. So circuit with the voltage divider supplying the base replaced with its Thevenin equivalent, और दूसरे में हमने B सर्किट में हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट बना दिया है। A सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया है जो आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है। और साथ में हमने क्या किया है, चूँकि मैंने अभी जिक्र किया था कि हमें स्टेबलाइजेशन नहीं होती बीटा की, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने इमिटर पे एक एडिशनल रेजिस्टर लगा दिया है। सो लेट मी गो बैक वंस अगेन टू दिस स्लाइड। अब देखिए गौर से, ये वही क्लासिकल सर्किट बायस अरेंजमेंट है, यानी बेस को मैंने पोटेंशियल डिवाइडर से बायस किया हुआ है। दो रेजिस्टर आपके पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट बना रहे हैं, किसके ऊपर, बेस के ऊपर। कलेक्टर के ऊपर भी मुझे लगाना है रेजिस्टर, क्योंकि वहाँ मैंने आउटपुट सिग्नल देखना है।
तो इस सर्किट में और लेफ्ट जो राइट पे आपको सर्किट नज़र आ रहा है वो उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट है। अब इसी सर्किट में उसी चीज़ को मैंने दोबारा रीड्रॉ किया है। इसमें आपको क्या चीज़ एडिशनल नज़र आ रही है, आपको इमिटर पॉइंट पर, इमिटर टर्मिनल पर एक एडिशनल रेजिस्टर RE नज़र आ रहा है, और ये मैंने जंक्शन ट्रांजिस्टर में आपको पहले भी बताया था। विद द एडिशन ऑफ एन resistor RE we get more stabilized Q point. So that's the idea of adding a resistor and still using a single power supply. अब इनकी मैं कंडीशंस जो कि इस तरह के सर्किट की कंडीशन इम्पोज होती हैं वो मैंने लिख दी हैं कि आपकी पावर सप्लाई शुड बी ग्रेटर दैन दी voltage drop across the base emitter diode and resistor should be calculated such कि ये बेस इमिटर की से आपके पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि एटलीस्ट 10 टाइम्स आपका ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये अप्रॉक्सीमेट हमने रूल्स बना लिए हैं by tabulating, by summarizing the various conditions for the forward bias voltage and the currents that we get in this type of biasing circuit, which is known as the potential divider biasing circuit for the base using a single power supply VCC, which forward biases as well as reverse biases the respective input loop and the output loop. This is a 2 power supply version of the same circuit जो आपने देखा। यहाँ अब एक मैं पावर सप्लाई VCC ले लेती हूँ जो कि कलेक्टर के साथ लगी हुई है और दूसरी मेरी इमिटर के साथ लगी हुई है। तो इमिटर VEE इमिटर और दूसरी कलेक्टर पावर सप्लाई। तो ये क्या कर रही हैं, तो इसमें हम रेजिस्टर RB कैन बी एलिमिनेटेड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मैं अगर जाहिर है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ले लें, 2 पावर सप्लाईज अब हमने VCC और VBE ले ली हैं, तो resistor RB is needed only if the signal is to be capacitatively coupled to the base and 2 constraints should apply। तो इसमें अब क्या हो रहा है कि ये आपकी वो जो 2 कंस्ट्रेंट आपने पहले लगाई थी वो अब हम नहीं उनको स्टडी करेंगे। इसमें अब हम एक फीडबैक रेजिस्टर के तौर पे सर्किट को, एम्पलीफायर सर्किट को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ आप देखिए कि मैंने RB जो कि हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के तौर पे कैलकुलेट कर लिया था बेस के साथ, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं RC के साथ, एंड हेंस द टाइटल द फीडबैक रेजिस्टर। तो इस फीडबैक रेजिस्टर के साथ आप दोबारा आउटपुट लूप में किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं और इस तरह हम करंट एंड वोल्टेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। Now I had mentioned in the beginning that when we are using different techniques for biasing the transistor amplifier circuit, कि चाहे आप उसको 2 पावर सप्लाईज लगाएं जैसा कि नॉर्मली हम करते हैं मीटर बेस जंक्शन में, और आउटपुट लूप में बेस कलेक्टर जंक्शन में या बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर, फिर उसी चीज़ को हम रिड्यूस करके सिंगल पावर सप्लाई से भी कर सकते हैं। अब हम बाइसिंग कर रहे हैं विद द करंट सोर्स। तो करंट सोर्स के तौर पे जब हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर सर्किट बनाते हैं तो Q1 and Q2 are required to be identical and have high beta। तो जब 2 करंट सोर्सेज ले रहे हैं तो इस डबल we are utilizing 2 transistors connected back to back, मिरर इमेज आपने उनका बना लिया हुआ है। तो इसमें Q1 को आपने शॉर्ट सर्किट किया है एंड द कलेक्टर टर्मिनल। तो इसमें कलेक्टर टर्मिनल, एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल आपने दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस के साथ शॉर्ट कर दिया है, तो आप कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपको पावर मिल रही है, जो आपको करंट चल रही है Q1 ट्रांजिस्टर में, आउटपुट करंट IC, वो अब आपके दूसरे ट्रांजिस्टर Q2 की आपकी करंट सोर्स से आपकी
बाइसिंग हो रही है। तो Q has been used, the symbol Q has been used to establish the Q point of transistor 1 and the Q point of transistor 2. So in this fashion we can utilize, we can bias the transistor with a current source. Conventionally तो आपने अब तक ये समझा है कि जैसे हम ट्रांजिस्टर को सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स से ही बायस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये किया था कि बजाय दो के हमने एक सिंगल पावर सप्लाई ले ली थी बायस करने के लिए। वही सिंगल पावर सप्लाई VCC जिसको हमने नाम दिया था, आपके इनपुट सर्किट को भी बायस कर रही है और आपके आउटपुट सर्किट को भी बायस कर रही है। लेकिन अब दो ट्रांजिस्टर लेके, जैसे कि इस सर्किट में मैंने इलस्ट्रेट किया है, वी कैन यूज़ द करंट instead of the conventional voltage for biasing the transistor labeled as Q2. To repeat once again, Q1 and Q2 symbol मैंने choose किए हैं to label the Q point that is used, that is chosen for operating the transistor in a mode such that there is, in a stable mode, so that there is no clipping or distortion of the output signal. So next, having discussed the biasing techniques for the amplifier transistors, we can then move on to small signal operations and again some models. And again I have quoted, listed the reference which I have used for this section. Now in this small signal operation, again we would do what we had done before, कि पहले तो हम सिंपल सर्किट्स को एनालाइज करेंगे। अब देखिए दोबारा इस डायग्राम को मैं 3 दफ़ा आज के लेक्चर में मैंने शो किया है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल येट वेरी इंटरेस्टिंग सर्किट डायग्राम, कि एक में आपको डीसी इक्विवेलेंट दिखाया और एक आपका। अब इस एक्चुअल इस डायग्राम में मैंने लेफ़्ट पे आपको एक सिंपल एम्पलीफायर सर्किट दिखाया है। सिंपल एम्पलीफायर सर्किट में आपके VBE यानी DC पावर सप्लाई भी दिखाई है और AC पावर सप्लाई VBE भी दिखाई है। In addition, I have shown you the direction of the currents flowing in the circuit. Naturally, the input voltage is a superposition of two components, the DC component and the AC component. तो naturally जो output circuit में आपको currents मिलेंगी, करंट्स एंड वोल्टेजेस दोनों जो मिलेंगी, उनकी वेव फॉर्म कैसी होगी? वो AC वेव फॉर्म होगी। तो वोल्टेज की भी AC वेव फॉर्म होगी और करंट्स भी आपकी AC वेव फॉर्म होगी। तो फिर से मैं एम्फसाइज करूं कि जो मैंने सिंबल यूज़ किए हैं वो मैंने स्मॉल लेटर्स यूज़ किए हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल लेटर्स मैंने आपको बताया है कि टोटल करंट ये टोटल वोल्टेज जो आप आउटपुट सिग्नल में देख रहे हैं, और जब मैं टोटल कह रही हूँ तो उसमें AC कंपोनेंट भी शामिल है और DC कंपोनेंट भी शामिल है। तो टोटल करंट जो आपको आउटपुट सिग्नल में मिल रही है उसका I यानी करंट का सिंबल स्मॉल है और जो उसका सबस्क्रिप्ट है वो कैपिटल है, विच मीन्स इट्स ए टोटल करंट। सो आई हैव शोन यू, आई हैव ट्राइड टू शो यू ऑल द 3 करंट कंपोनेंट्स originating from getting from the 3 terminals. I have shown you 2 voltages, 2 voltage drops between the base and the emitter and the collector and emitter आपको clearly नज़र आ रहे हैं। अब मैंने राइट हैंड साइड पे सर्किट B में इस एम्पलीफायर सर्किट का इक्विवेलेंट शो किया है। सिर्फ मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ AC सिग्नल को रिमूव कर दिया है, शो नहीं किया है, ऐसे कि जैसे ये एक सर्किट है जिसमें AC सिग्नल मौजूद नहीं है और जिसको मैंने लिखा था विद द AC सिग्नल एलिमिनेटेड या पुटिंग AC सिग्नल इक्वल टू 0। सो इसे कंसेप्चुअल यानी एक आपने कॉन्सेप्ट बनाया है कि इस सर्किट कि जिसका ऑपरेशन ऐसा है कि इसमें B पार्ट की तरफ मैं आती हूँ। द सर्किट ऑफ A विद द सिग्नल सोर्स एलिमिनेटेड फॉर DC बायस। तो इसमें मैंने सिर्फ DC बायस के सर्किट को एलिमिनेट किया है, तो मेरे पास AC प्योर AC सिग्नल आ गया। वही चीज़ मैंने रिप्रोड्यूस कर दी है और इसको मैंने लिखा है द DC बायस कंडीशन। अब मैं DC बायस कंडीशन लिखने जा रही हूँ जिसमें मैंने VBE को रिमूव कर दिया है। ये मोर और लेस वही चीज़ है, मैं रिपीट कर रही हूँ जो मैंने शुरू में आपको समझाई थी।
तो डीसी बायस कंडीशन के लिए हम सिग्नल VBE यानी AC सिग्नल को हमने रिमूव कर दिया है। टू एम्फसाइज वंस अगेन, आप देखिए जो मैंने रेड में सिंबल लिखा है AC सोर्स का, सिर्फ प्योर AC सोर्स का, तो दोनों मैंने वीक वोल्टेज का सिंबल और बेस इमिटर दोनों के सिंबल मैंने दोनों ही स्मॉल लेटर्स लिखे हैं। अब डीसी करंट एंड वोल्टेजेस, ये इक्वेशन हमने आउटपुट सिंपल ट्रांजिस्टर सर्किटरी में ऑपरेशन में पढ़ी थी कि आपकी कलेक्टर करंट जो है वो लीकेज करंट की निस्बत एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। और ये करंट आ कहाँ से रही है कलेक्टर में, पहले भी मैंने बताया था, ये एक्चुअली इमिटर से करंट ओरिजिनेट होके कलेक्टर तक पहुंची। इमिटर में करंट कैसे कंट्रोल हो रही है, VBE से। तो इसीलिए आपको कहते हैं ट्रांजिस्टर के एक्शन आपका इमिटर बेस जंक्शन में हो रहा होता है, बेस इमिटर जंक्शन में हो रहा होता है, और उसका असर आपको जाके कलेक्टर इमिटर जंक्शन में मिल रहा है। तो बेस इमिटर से वोल्टेज के कंट्रोल से, बेस इमिटर वोल्टेज की वेरिएशन से आपकी IB वेरी हुई, IB के वेरी होने से IC आपको मिली। तो वही मैंने IC आपकी लिख दी कि IC rises exponentially if I plot a graph between VBE base emitter curve, base emitter voltage and collector current, you would see an exponential rise, just as you saw an exponential rise। शुरू की स्लाइड्स में मैंने जो आपको IB वर्सेस VBE का ग्राफ मैंने आपको दिखाया था, तो वही चीज़ अब IC वर्सेस VBE भी आपको नज़र आएगी। और ऑफ कोर्स you know that VBE, the variation in IB current and therefore the variation in IC current is strongly temperature dependent होती हैं। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर्स में तमाम फिनोमिनास जो हैं, मोस्ट ऑफ द फिनोमिनास जो हैं, दे हाईली सेंसिटिव टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो इसलिए आप एक्सपोनेंशियल में जो आपको डिनोमिनेटर में फैक्टर नज़र आ रहा है, दैट्स द थर्मल वोल्टेज V। IS आपकी लीकेज करंट है। ये वो करंट है कि अगर आप ट्रांजिस्टर को ना बायस करते तो भी ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से ये करंट चल रही होती। सो टू कम बैक अगेन, योर कलेक्टर करंट देयरफॉर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज दैट यू अप्लाई इन द इनपुट लूप, क्योंकि इनपुट लूप ही करंट प्रोड्यूस करता है जो आपको जाके कलेक्टर में मिल रही है। सो हियर इज द फॉर्मूला, द फर्स्ट लाइन गिव्स यू द एक्सप्रेशन in exponential term for the collector current that you get at the collector terminal। next line आप देखिए, ये relationship है emitter and collector current में। आपको मालूम है कि अल्फा गेन फैक्टर होता है रेशियो ऑफ IC ओवर IE, तो ये मैंने वहाँ से लिखा। और बेस करंट और कलेक्टर करंट में क्या रेशियो होती है, दैट इज़ बीटा। तो इनफैक्ट ये सारी चीज़ें मैंने रिप्रोड्यूस की हैं जो आपने पहले कई दफ़ा हमने इन लेक्चर्स में इनको दोहराया है, ख़ास तौर पे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में एज अ करंट डिवाइस। जब हाइब्रिड पैरामीटर का हम जिक्र कर रहे थे तो हमने दो रेशियोज़ डिफाइन की थी। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा वाज द गेन फैक्टर विच इज़ अ रेशियो ऑफ IC एंड IB। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अल्फ़ा वाज द गेन फैक्टर जो कि रेशियो है IC और IE की। तो ये दो इक्वेशंस वही चीज़ें हैं। बॉटम जो लास्ट लाइन आपको नज़र आ रही है, दैट्स द किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द आउटपुट सर्किट। तो ये मैंने काइंड ऑफ समरी लिखी है दोबारा उसी चीज़ की जो शुरू में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर प्योर आप DC ऑपरेशन स्टडी कर रहे हो तो हम किरचॉफ वोल्टेजेस लॉ लगा के इन वोल्टेजेस को दोबारा लिख सकते हैं, वोल्टेजेस को लिख सकते हैं और करंट की इक्वेशंस को लिख सकते हैं। तो मैंने IC करंट को VBE की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, एक्सपोनेंशियल नेचर होगी। IE और IB को मैंने अल्फा और बीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस किए हैं। इस ट्रांसपेरेंसी को, ये काइंड ऑफ रिवीजन है हमारे पहले लेक्चर्स की, तो इसको बेस बना के अब आगे मैं चीज़ें कैलकुलेट करती हूँ। उसी चीज़ को मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया है कि चूँकि मेरा NPN ट्रांजिस्टर है, सो द कलेक्टर करंट मोर और लेस इज द सेम एज द इलेक्ट्रॉन जो कि अपना जर्नी इमिटर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ, कलेक्टर करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट है इमिटर में, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके शुरू कर रहे हैं अपना जर्नी, वो बेसिकली वही चीज़ है। फिर मैंने उसी चीज़ को दोबारा इस तरह लिख दिया है IEA। तो इस रीअरेंजमेंट ऑफ द प्रीवियस स्लाइड वो मैंने इसलिए लिख दी है कि अगले जो आप निकालें
चीज़ें उनकी आपको समझ आ जाए। तो हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, द कलेक्टर करंट एंड द ट्रांसकंडक्टेंस, द बेस करंट एंड द इनपुट रेजिस्टेंस एट द बेस, एंड द कलेक्टर करंट एंड द इनपुट रेजिस्टेंस एट द इमिटर। तो ये चीज़ थी जिसकी तरफ मैं आना चाह रही थी, और मैंने पहले पिछली 2 स्लाइड्स में समरी लिख दी थी जो हमने पिछले ट्रांजिस्टर लेक्चर्स में, आई बिलीव लेक्चर नंबर 20 एंड लेक्चर नंबर 21 में हमने ये डिटेल में इन करंट कंपोनेंट्स के बारे में और हाइब्रिड पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशंस की थी, पर्टिकुलरली इन लेक्चर 21 एंड ऑल्सो इन 21। तो आज का ये लेक्चर नंबर 22 है। तो पिछले 2 लेक्चर्स की जो समरीज थी वो मैंने लिस्ट कर दी अभी पिछली 2 स्लाइड्स में। तो कलेक्टर करंट और ट्रांस कंडक्टेंस की बात हो रही थी। तो अभी जैसे मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था ग्राफिकल एनालिसिस में, कि अगर मैं बेस करंट IB और कलेक्टर बेस करंट IB और बेस वोल्टेज VB में ग्राफ प्लॉट किया था मैंने, तो आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाई थी। बेस करंट रिलेटेड है कलेक्टर करंट से, IC is beta IB, so therefore I can draw a relationship between the output current IC as a function of VBE, और उसी को फिर हमने आगे कलेक्टर की ट्रांस कंडक्टेंस कहा था। So if an AC signal VBE is applied, the total base emitter voltage VBE is given by the sum of AC signal VBE plus DC bias VBE। अब इस चीज़ को आप गौर से समझिए, क्योंकि मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है आउटपुट सर्किट में और इनपुट सर्किट में। तो पहले मैं इनपुट सर्किट लेती हूँ। इनपुट सर्किट में आपकी 2 वोल्टेजेस मौजूद हैं, दी DC कंपोनेंट। अब DC कंपोनेंट को मैंने लिखा हुआ है DC बायस VBE, दोनों कैपिटल लेटर से, और AC सिग्नल को दोनों स्मॉल यानी लोअर केस से लिखा हुआ है। सो टॉप लाइन में आपको VBE रेड कलर में जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ AC सिग्नल है, और कैपिटल जो अपर केस हैं वो आपका DC वोल्टेज है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरी मिली रेड में अगेन VBE। तो ये आपकी टोटल बेस वोल्टेज है, टोटल बेस वोल्टेज, सम ऑफ 2 कंपोनेंट्स द DC एंड AC। ये आपकी पहली इक्वेशन है। सो ये टोटल वोल्टेज की फॉर्म क्या होगी, AC, क्योंकि आपने सुपर इम्पोज किया है ना। सो ये टोटल बेस एमिटर वोल्टेज जिसकी फॉर्म आपकी AC होगी वो क्या हुई, द DC कंपोनेंट प्लस द प्योर AC कंपोनेंट। नेट आपका जवाब आया AC टोटल वोल्टेज। तो फिर करंट को मैंने इसी तरह लिख लिया। तो ये सिंपली एक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है कलेक्टर करंट की। तो अब बेस वोल्टेज VBE, total AC voltage, total voltage in the input circuit, the total voltage in the input circuit consisting of the DC component and the AC component। अब मेरे पास कलेक्टर करंट जो आखिरी 3rd इक्वेशन है ये कलेक्टर करंट है। इन दोनों का मैं रिलेशनशिप रीअरेंज करके अभी आपको ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने रीअरेंज कर ली। ये मेरी पहली इक्वेशन थी जो बिल्कुल टॉप पे जहाँ मैंने लिखा है सिंस IC इज इक्वल टू दिस, और नीचे मैंने उसको सेपरेट करके लिख दिया है। तो मैं रीअरेंज करके लिख सकती हूँ इस इक्वेशन को। अब याद रखिए टॉप इक्वेशन आपकी क्या है, दैट इज़ प्योर DC करंट। नीचे आपकी क्या है, द टोटल AC करंट। और इसी तरह तो आप ये देख रहे हैं कि टोटल AC करंट जो है, AC करंट जो है वो आपके कंसिस्ट कर रही है, यानी आपकी टोटल AC करंट इज राइजिंग एक्सपोनेंशियली एज अ फंक्शन ऑफ IC द DC करंट। ये देख रहे हैं ये बॉटम रिलेशन में जिसमें मैंने लिखा है हंस कि आपने टॉप से AC से शुरू किया, DC कंपोनेंट से, DC करंट कंपोनेंट से शुरू किया, और नीचे बॉटम में अब आपने AC करंट एज अ फंक्शन ऑफ DC करंट निकाल ली। तो DC करंट के मुकाबले में अब आपकी AC करंट एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है। तो इस चीज़ को मैं रीराइट करती हूँ कि टोटल कलेक्टर करंट देयरफॉर इज गिवन बाय दिस। अब यहाँ आपको टोटल कलेक्टर करंट जो कि स्मॉल
सिंबल से मैंने रिप्रेजेंट की है वो एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है एज ए फंक्शन ऑफ द डीसी करंट आईसी। इसको अब मैं चूँकि एक्सपोनेंशियल फैक्टर को मैं टेलर एक्सपेंशन करके इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ और सिर्फ 2 टर्म्स ब्रैकेट में लिखती हूँ। और फिर मैं क्या कहती हूँ कि टोटल कलेक्टर करंट इज देयरफॉर कंपोज्ड ऑफ द डीसी बायस वैल्यू एंड एन एसी कंपोनेंट आईसी। तो इसमें मैं इसको सिंप्लीफाई करके मैंने आप दोबारा लिख लिया कि VBE एंड कलेक्टर करंट को मैंने सिंपली अप्रॉक्सीमेट करके 2 फॉर्म्स में लिख लिया, यानी VBE ओवर VT को मैंने सेपरेट कर दिया और IC को। नाउ कलेक्टर करंट द पैरेंथेसिस, इन द पैरेंथेसिस जो आपका 1 फैक्टर आया, अगर हम उसको निगलेक्ट कर दें, दूसरे प्रोडक्ट IC एंड IC वर्सेस दिस, इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर लें तो आपके पास ये रिलेशनशिप आ गया। तो अब जो फाइनली मेरे पास रिलेशन आया वो ये आ गया। I'm sorry, in this VBE is missing in the top line। तो अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि VBE ओवर IC ओवर VT को मैं GM लिख सकती हूँ, क्योंकि ये रेसिप्रिकल ओवर करंट ओवर वोल्टेज का रिलेशनशिप आपको रेसिप्रिकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है, जिसको मैंने GM कह लिया। हेंस GM कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांस कंडक्टेंस। और ये ट्रांस कंडक्टेंस इसलिए कि रिलेशन रिलेट्स द सिग्नल करंट इन द कलेक्टर टू द कॉरस्पॉन्डिंग बेस इमिटर सर्किट। अगर आप गौर से इस इक्वेशन नंबर 2 को देखें जिस पर रेड एरो मैंने लगाया हुआ है, तो आपकी कलेक्टर करंट IC, total collector current IC has been calculated or is related to the total base voltage VBE through the, and आपके ये proportionality constant जो है वो G है, और G is the transconductance measured in the units of inverse of resistance. That's how we define or derive the transconductance in an amplifier circuit in a very simple manner. All you have to do is, to revise once again, all you have to do is write the Kirchhoff voltages law both for the input as well as output circuit, draw the input as well as output characteristic and determine the value, write the relationship. Keep in mind now that you have 2 current components and thus 2 voltage component in the input, each in the input as well as output loop, क्योंकि एक आपके पास DC कंपोनेंट है, दूसरा आपके पास AC कंपोनेंट है, और दोनों का सम मिलके आपको टोटल AC वोल्टेज एंड AC करंट रहेगा। लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना होगा, वो है सिंबल्स का, कि कैपिटल सिंबल्स के DC प्योर DC के लिए कुछ और सिंबल्स होते हैं अपर केसेस से, प्योर AC के लिए लोअर केसेस होते हैं बोथ, और जो सम दोनों का होता है टोटल, उसके लिए एक जो सबस्क्रिप्ट है वो अपर केस होता है, कैपिटल लेटर्स होते हैं, और जो क्वांटिटी का सिंबल है यानी करंट का, तो वो स्मॉल लेटर्स होते हैं, यानी स्मॉल I एंड स्मॉल V, और जो सबस्क्रिप्ट है वो फिर आपके कैपिटल होते हैं। तो ये सिंबल्स हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल एनालिसिस है कैलकुलेट करने का। तो उसी चीज़ को अब मैंने जैसे शुरू में बताया था कि मैं ट्रांस कंडक्टेंस की कर्व भी कोरिलेट कर सकती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने कोरिलेट किया है। अगर आप y एक्सिस की क्वांटिटी IC को ना देखें तो एग्जैक्टली यही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ की थी IB और VBE के दरमियान, लेकिन मैंने बताया कि IC इज सिंपली बीटा टाइम्स IB, तो आप इस लिहाज से IC रिप्लेस कर सकते हैं। और इस ट्रांस कंडक्टेंस कर्व से भी उसी तरह हम Q पॉइंट निकाल सकते हैं। अब ये Q पॉइंट आपको 2 कंपोनेंट्स दे रहा है, 2 वैल्यूज़ दे रहा है, एक VBE की और दूसरी IC की, और इसी तरह आपको ग्राफ पे स्लोप भी नज़र आ रही है, विच इज़ 1 ओवर रेसिप्रिकल ऑफ द रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस, और इस केस में बेस रेजिस्टेंस आपको दे रही है GM, दैट इज़ ट्रांस कंडक्टेंस। तो उस एक्सप्रेशन को मैंने दोबारा रिप्रोड्यूस कर लिया है। ये देखिए, मैं ये जो बॉटम की इक्वेशन थी अब मैं उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करके दिखा रही हूँ फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी,
तो ट्रांस कंडक्टेंस ज़ाहिर है ओम्स लॉ के ज़रिए V इज़ इक्वल टू आई आर, तो 1/r वुड बी I ओवर V। अब I क्या है, ICQ, यानी ये वो करंट है जो आप Q पॉइंट से हर करंट तो आप नहीं ले रहे, आप कौन सी करंट की वैल्यू चूज़ कर रहे हैं, आउटपुट करंट की जो Q पॉइंट आपको दे रहा है। तो Q पॉइंट वाली कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय द thermal voltage at room temperature, that is GM. तो physical meaning of GM is that it gives you the slope of the transfer characteristic या input characteristic। input characteristic आपकी IB और VBE के दरमियान होती है, लेकिन यहाँ पे आपने कलेक्टर करंट और input voltage के दरमियान ये करंट ड्रॉ की हुई है। और एट रूम टेम्परेचर इस स्लोप की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 40 मिली सीमेंस है। सीमेंस जो है वो भी वही यूनिट है जो मो की यूनिट होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अभी ये एनालिसिस किया था, अब हम जैसे पहले हमने एनालिसिस किया स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, तो अब हम बेस करंट एंड इनपुट रेजिस्टेंस एट द बेस कर सकते हैं। तो टू डिटर्मिन द रेजिस्टेंस सीन बाय VBE, यानी बेस पर आपको जो AC सिग्नल आ रहा है उसको कितनी रेजिस्टेंस मिलेगी बेस पर, वो कैलकुलेट करने के लिए हमने दोबारा रिलेशनशिप IC और IB में लिख लिया। और आपको मालूम है कि ये रिलेशन क्या होता है, IC ओवर IB इज सिंपली बीटा। तो री राइट करके उस रिलेशन को मैंने दोबारा लिख लिया है। और चूंकि अब हम एम्पलीफायर सर्किट यूज़ कर रहे हैं और एम्पलीफायर सर्किट्स में आपके दो कंपोनेंट्स आते हैं, तो मैंने IC को पिछले रिलेशंस लगाते हुए अब दो टर्म्स मेरे पास आ गई, IC ओवर बीटा प्लस IC ओवर VT। अगर आप मैं पीछे जाऊं तो आप इस रिलेशन को खुद से डिराइव कर सकते हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि टोटल करंट इन द टोटल DC current in the base is a sum of pure DC component as well as pure AC component। तो वो दोनों आपको यहाँ सिंबल नज़र आ रहे हैं। तो इनफैक्ट इन सिंबल्स को अगर आप अच्छी तरह समझ जाएं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्मॉल I स्मॉल b is the pure AC component, कैपिटल I कैपिटल B is the pure DC component। दोनों को जब कंबाइन करेंगे स्मॉल I एंड कैपिटल B, that is the total base current which in form यानी shape will be an AC current। तो इस चीज़ को जब दोनों को हम कंबाइन करें तो टोटल सिग्नल एंड द सिग्नल कंपोनेंट IB इज गिवन बाय, तो अब जो आपके पास सिग्नल यानी AC सिग्नल की करंट आ गई, दैट कंसिस्ट ऑफ द that can be determined by pure AC current IC times the AC signal VBE। तो इस तरह हम डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांजिस्टर में, और इसी तरह हम ट्रांस कंडक्टेंस निकाल सकते हैं नाउ एज सीन बाय द बेस। और इसका द स्मॉल सिग्नल इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर लुकिंग इनटू द बेस इज डिनोटेड बाय R पाई। तो R पाई एक स्पेशल सिंबल है, एक स्पेशल टर्म है एम्पलीफायर सर्किट्स में, कि जब आप बेस की रजिस्टर कैलकुलेट कर रहे होते हैं और सिर्फ AC सिग्नल की वोल्टेजेस के लिए, ये जो है द स्मॉल सिग्नल इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड इमिटर लुकिंग इनटू द बेस इज डिनोटेड बाय R पाई एंड इज डिनोटेड डिफाइंड बाय। तो ये वो रेजिस्टेंस है जो सिर्फ आपकी AC वैल्यू से निकल रहा है, कि आपकी AC करंट, AC बेस करंट एंड AC ड्रॉप बिटवीन बेस एंड एमिटर, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन बेस एंड एमिटर से जो रेजिस्टेंस निकलती है उसको आप R पाई से डिनोट किया हुआ है। और फिर चूंकि बीटा तो डिफाइन ट्रांजिस्टर का उसके DC कंपोनेंट से होता है, तो हम इसको बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ the important thing to emphasize over here is कि बीटा जो है हमारा एक कांस्टेंट फैक्टर नहीं होता, इवन दो इट गिव्स यू द रेशियो ऑफ द कलेक्टर एंड बेस करंट DC कंपोनेंट। इसके इक्विवेलेंट स्मॉल फैक्टर्स भी हम DC AC
फैक्टर्स भी निकाल लेते हैं बाय चूजिंग दी डेल्टा IC ओवर डेल्टा IB, लेकिन इसमें टेम्परेचर की वेरिएशन हो रही होती है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी होती है कि आप AC सिग्नल की बात कर रहे हैं या DC सिग्नल की प्योर बात कर रहे हैं, और अगर उसमें वेरिएशन टेम्परेचर की हुई तो बीटा इज़ लाइकली टू चेंज। तो यही चीज़ मैंने दोबारा जो अभी मैंने कही थी कि R pi is directly dependent on beta and is inversely proportional to the base current IC। तो जब इन चीज़ों को हम GM में ट्रांसकंडक्टेंस के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये एक फेमस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ द थर्मल वोल्टेज VT एंड द बेस करंट IB निकल आता है। अब यही रिलेशन जो मैंने चूज़ किए थे, ये देखिए मैं वापस जाती हूँ बेस करंट की तरफ। तो बेस करंट को मैंने शुरू किया था। बेस करंट को निकालने के लिए मेरे पास एक हाइब्रिड पैरामीटर का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, विच इज़ IB, रिलेशन बिटवीन IB एंड IC। इसी चीज़ को मैं कॉपी करती हूँ फॉर इमिटर करंट, कॉपी नहीं बेस बनाती हूँ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इमिटर करंट एंड द इनपुट रेजिस्टेंस एट द इमिटर। तो अब मैंने IE और IC में रिलेशनशिप लिख लिया जो कि अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा इज सिंपली द रेशियो बिटवीन IC एंड IE। इसको मैंने रीराइट किया। अब चूंकि देखिए आपको पहली इक्वेशन में फिर से मैं एम्फसाइज करूं फॉर द nth टाइम कि आपकी टोटल करंट इन द इमिटर एट द इमिटर टर्मिनल मैंने लिखा हुआ है I स्मॉल विच इज़ AC, C सबस्क्रिप्ट कैपिटल विच इज़ टोटल। तो स्मॉल I एंड कैपिटल C इज द टोटल करंट, और टोटल करंट फिर दो कंपोनेंट पे है, एक AC और DC। अब आप देखिए बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड को दोनों चीज़ें स्मॉल हैं विच इज़ प्योर DC AC, एंड देन दोनों कैपिटल हैं प्योर DC। तो मैंने टोटल करंट को दो कंपोनेंट में बांट लिया, AC एंड DC अलग अलग कर लिए दोनों कंपोनेंट। तो वही मैंने नीचे लिख दिया है कि जो आपकी इमिटर की करंट है, टोटल इमिटर करंट कंसिस्ट ऑफ AC कंपोनेंट, AC कंपोनेंट दोनों स्मॉल लेटर्स, DC कंपोनेंट दोनों कैपिटल लेटर्स। तो इस तरह एनालिसिस करके हम टोटल करंट को सर्किट में दो कंपोनेंट्स में दिखा सकते हैं, द AC कंपोनेंट एंड द DC कंपोनेंट। अब इस स्टेज पे उसको फिर मैंने आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख दिया। Similarly, I can rewrite the emitter current and input resistance at the emitter। पहले मैंने आपके सिर्फ करंट्स कैलकुलेट की थी, ये देखिए यहाँ मैंने इमिटर करंट कैलकुलेट की थी। अब मैं इमिटर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेती हूँ। इमिटर में जो आपकी रेजिस्टेंस इमिटर की है वो आपकी द करंट फ्लोइंग थ्रू द इमिटर होगी, और आपकी जो वोल्टेज है वो बेस इमिटर वोल्टेज है। तो इसको कैलकुलेट करके मैंने इमिटर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। अगेन आप देखेंगे जैसा हमने बेस में देखा कि बेस की रेजिस्टेंस आपकी दो चीज़ों से कंट्रोल हो रही है, द बीटा फैक्टर एंड द ट्रांसकंडक्टेंस GM। यहाँ आपके इमिटर में अल्फ़ा से कंट्रोल हो रही है और GM द ट्रांसकंडक्टेंस फैक्टर GM से कंट्रोल हो रही है। तो इन चीज़ों को अब मैंने दोबारा से रीराइट करके काइंड ऑफ समरी बना ली है कि VBE और R pi ये दो आपके रिलेशनशिप निकल आए एट द इमिटर, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके बेस के निकले थे। अब उन चारों चीज़ों को कंबाइन करके एट द बेस एज वेल एज इमिटर आई कैन रीराइट अ समरी ऑफ ऑल द फोर वैल्यूज़। R pi एट द बेस, जैसा मैंने अभी बताया कि बेस लुकिंग इनटू द बेस, जो AC सिग्नल बेस की रेजिस्टेंस देख रहा है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GM। GM इज द ट्रांसकंडक्टेंस, बीटा फर्दर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इनपुट रेजिस्टेंस आपकी इमिटर पर है, जैसे बेस पे आपकी इनपुट रेजिस्टेंस थी वैसी इनपुट आपके इमिटर पे रेजिस्टेंस है, वो अल्फ़ा पे डिपेंड कर रही है और GM पे डिपेंड कर रही है। और आपके R pi और RE में बड़ा सिंपल रिलेशनशिप है। तो इस ट्रांसपेरेंसी में, इस स्लाइड में मैंने उन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया है। दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माई लेक्चर, but I would like to however highlight one point at this stage
कि जब हम स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन की बात कर रहे थे तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दैट हाउ स्मॉल योर यस दिस इज़ द स्लाइड आई वांटेड टू शो कि मैंने कहा कि अंडर द स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन द टोटल कलेक्टर करंट इज़ गिवन बाय I would like to re-emphasize the meaning of the small signal approximation क्योंकि ये जो मैंने नीचे नंबर 2 लाइन में जाके approximation की है और उसकी वजह मैं समझाना चाहूँगी। स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन से ये मुराद है कि सिग्नल तो आप लगा रहे हैं, द एम्पलीफायर बिकम्स द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको आप एम्पलीफायर सर्किट कहते हैं, बीजेटी एम्पलीफायर सर्किट नॉर्मली हम इसको जर्नली कहते हैं बीजेटी एम्पलीफायर सर्किट, विच मीन्स ट्रांजिस्टर हैज़ बीन डिज़ाइन टू ऑपरेट एज एन एम्पलीफायर। तो उसमें पहली कंडीशन क्या होती है कि डीसी तो आपने लगाना है, क्योंकि अगर आप डीसी नहीं कनेक्ट करेंगे तो इमिटर बेस जंक्शन हैज़ टू बी फॉरवर्ड बायस टू एक्ट एज अ करंट डिवाइस एंड बायस the outer base collector base junction or collector emitter junction has to be reverse biased. So both the input loop as well as output loop has to be biased. तो आपने एक तो DC पावर सप्लाई लगाई, DC इसलिए क्योंकि you have to keep the emitter base junction forward biased all the time so that it remains forward biased. Otherwise अगर आपका AC सिग्नल सिर्फ होगा प्योर AC सिग्नल, तो प्योर AC सिग्नल में जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपका इमिटर बेस जंक्शन या इमिटर बेस लूप नेगेटिवली बायस रिवर्स बायस हो जाएगा, उस दौरान आपकी करंट नहीं चलेगी। तो DC पावर सप्लाई तो इसलिए ज़रूरी होगी बिकॉज यू वांट द इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड ऑल द टाइम। अब आपने उसके ऊपर एडिशनल सुपर इम्पोज किया AC सिग्नल। नाउ आई वांट टू explain the meaning of small signal approximation। इसका मतलब ये है कि एक तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो सिग्नल आप लगाएं वो एटलीस्ट इतना हो कि जो आपकी DC की वैल्यू है उससे छोटा हो। क्यों छोटा हो? कि जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएंगे तो नेगेटिव ऑफ द AC एंड पॉजिटिव ऑफ द DC मिलके टोटल फिर भी पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि आपका एमिटर बेस जंक्शन एट ऑल टाइम्स फॉरवर्ड बायस्ड हो, even if your AC signal is in the negative. During the negative half cycle of the AC signal, your junction should still remain forward biased. अब आप अगला सवाल आपको पूछना चाहिए, how small? कि small कितना small होना चाहिए? How small is a small? तो चूँकि मैंने पहले बताया कि बेस में से आप बहुत ज़्यादा करंट्स तो गुजार नहीं सकते, क्योंकि पावर डिसिपेशन को अभी आपने ख्याल रखना है। आपने ट्रांजिस्टर में से इतनी हाई करंट्स नहीं गुजारनी कि आप उसको डैमेज ही कर दें। तो बेस में आपने करंट्स स्मॉल गुजारनी है। तो एक तो आपने VBE को बहुत ज़्यादा नहीं चूज़ करना, फिर ऊपर से आपने AC को भी स्मॉल रखना है। तो देन हाउ स्मॉल इज़ स्मॉल? तो मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगी कि अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीवोल्ट्स का सिग्नल जो है, समथिंग लाइक 10 मिलीवोल्ट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन। और इसका मैं आपको relative magnitude बताऊं थर्मल वोल्टेज के साथ, तो थर्मल एनर्जीज आर रफली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी मुनासबत से आप 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी थर्मल वोल्टेजेस होती हैं, थर्मल एनर्जी होती है, तो 25 मिली वोल्ट आपकी रफली थर्मल वोल्टेज हो जाएगी। तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि देयरफॉर योर AC सिग्नल इज समवेयर लेस देन 25 और 10 मिली वोल्ट वुड बी अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। तो ये मैं हाईलाइट करना चाह रही थी कि चूँकि मैंने हेडिंग दी हुई है स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन, कि अगर हम आप AC सिग्नल की वोल्टेजेस को 10 मिली वोल्ट तक choose करें, then we can use this small signal approximation, and if we do that तो फिर हम टॉप वाली इक्वेशन जो है एक्सपोनेंशियल फैक्टर को हम एक्सपैंड कर लें टेलर सीरीज से, और फिर हम नीचे की इक्वेशन पे पहुंच के द इक्वेशन एट द वेरी एंड आप टोटल कलेक्टर करंट को कैलकुलेट कर, द सिग्नल करंट को AC सिग्नल करंट को इस तरह
कैलकुलेट कर सकते हैं. So that brings me to the end of my today's lecture, जिसमें हमने to revise once again, जिसमें हमने स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन को डिस्कस किया, हमने डीसी एनालिसिस को डिस्कस किया, और हमने डिफरेंट modes, different techniques of biasing the amplifier circuit किया. Now there is another important topic, which is the separation of the DC and AC quantities, and then the hybrid pi model, तो जो अब हम next lecture में करेंगे इंशाल्लाह. आज हमारा lecture number 22 था, so perhaps it will be 23rd lecture में वो दो topics जो आज के lecture में include नहीं हो सके वो मैं cover करना चाहूँगी. और hybrid parameter model of the amplifier circuit करने के बाद I would go to a very interesting thing, और जिसको मैं बहुत important भी समझती हूँ कि amplifier circuits पे जितने हमने 3 या 4 lecture अब तक कर लिए हैं, I would like to solve in my lectures various examples, और आपको मैं exercises भी दूँगी ताकि जितनी हमने transistor based अब तक lectures किए हैं वो आपको completely उनकी comprehension हो जाए. So I do hope that you are not only understanding the current subject electronics 1, but you are also enjoying it, and that's the whole idea, that you should study a subject, given subject, not only from understanding point of view, but you should also be in a position to enjoy how beautiful all these circuits are, how the mathematics is evolved, how the mathematics evolves after understanding or drawing the circuit, and how you can analyze it. Thank you so much, and I look forward to seeing you in my next lecture. Allah Hafiz.